to the esteemed dignitaries of JLW Apex Main Wing, GIF and JLW Apex Ladies Wing, zone conveners, chapter chairpersons, chapter secretaries, and all the enthusiastic participants of today who are here today. It is an honor to address you as the convener of JLW and GIF. I am truly delighted to welcome you all to today's masterclass series. This event marks yet another milestone in our journey towards fostering innovation, achieving economic empowerment, and driving impactful change with the ladies. Before we commence this exciting session, let us begin by reciting the Navkar mantra to invoke divine blessings and set a positive tone for the proceedings. Shweta, can you please play Navkar mantra? Shweta? Yes, ma'am. Shweta, your mic is on mute. अभी Thank you, Shweta. Ladies and gentlemen, GIF, Jito Incubation Innovation Foundation, has always been about fostering entrepreneurship, empowerment, and financial literacy. Together with JLW, we aim to empower women, encourage innovation, and transform challenges into opportunities. This masterclass series, or I would tell masterclass session, is designed to provide transformative insights and inspiration. Today's speaker, Sri Vijay Vikram Singh, popularly known as the voice narrator of Big Boss, a TEDx and motivational speaker, will share his expertise and valuable perspectives. I encourage all of you to remain fully engaged as this session promises to offer guidance and inspiration to help you in your personal and professional journeys. Let us make the most of this opportunity to learn, grow, and take one step closer to our collective goals. To officially commence today's session, I am honored to invite Mavirji Chaplot, the Secretary in Charge WC. With his exceptional dedication and visionary leadership, Mavirji has played a pivotal role in driving our initiatives forward. We are exceptionally blessed, Mavirji, so as you are on the stage today with us. Over to Mavirji. We welcome you, Mavirji. Yeah, pranam to all and a very hearty Jai Jinendra. So, अपने उद्देश्य को खोजें और प्रेरित रहें। कितना सुंदर टॉपिक। जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां सपने केवल शुरुआत होते हैं और हकीकत उन्हीं के लिए बनती है जो अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर अडिग रहते हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा, सपने आपकी तकदीर का नक्शा है, लेकिन उन्हें साकार करने का रास्ता आपकी मेहनत और दृढ़ता से गुजरता है। आज जो हमारे बीच में स्पीकर हैं हमारे जो मास्टर क्लास ट्रेनर विजय विक्रम सिंह जी, जो उनका प्रेरणादायक जीवन हमें सिखाता है कि एक बार आप जब अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं तो हर बाधा आपकी ताकत बढ़ाने का जरिया बन जाती है। उनका सफर हमें संदेश दे रहा है कि यदि आप अपने सपनों के प्रति सच्चे और प्रेरित हैं तो आपको कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। और ऐसी ही हमारी विजय विक्रम सिंह जी जीतो लेडीज विंग की हर एक महिला है, हमारी जैन समाज की हर एक महिला है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जीतो लेडीज विंग में हमारी डायरेक्टर इंचार्ज सोनाली जी, हमारी लाडली बहना हमारी शीतल जी जो चेयरपर्सन है, ऋतु जी, प्राची जी, मोनिका जी, आप सभी, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन जो जो मातृशक्ति यहाँ पे है उन सभी को साधुवाद और वंदन। एक श्रेष्ठ मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज करने के लिए आप पूरे जेतु वर्किंग कमेटी की ओर से, हमारे पृथ्वीराज जी कोठारी साहब की ओर से, विजय जी की ओर से, ललित जी की ओर से और
एक एक जीतो मेंबर की तरफ से आपको बहुत बहुत कोटेज वंदन और बधाई। धन्यवाद। Thank you, Mahavir ji, for the inspiring words and for setting a perfect tone for today's program. It's now my honor to invite a leader of immense wisdom and vision, Vijayji Bhandari, the president of Jito Apex. Vijayji's leadership and foresight continue to inspire and uplift in our community. Shweta, Vijayji hai na? Vijayji join? Yes, ma'am. Yeah. Vijayji, I welcome you. Vijayji Bhandari? I'm not able to see him. नहीं वाह। विजय सर नहीं Vijay नहीं sir nahi? भंडारी Chalo. नहीं है I जी। recognize the presence of Sheetalji, Sonaliji Duggar, Sheetalji Duggar, Jinenji Bhandari, and Shaileshji Haran, Shashiji Mando, Rituji Shored, and all the dignitaries of Apex on this platform today. And to introduce our speaker for today, I would like to invite our co-convener as well, CA Prachi Jain, to take away today's session. Thank you, Anita ji, so much. And hi, everyone. This is CA Prachi Jain. We have with us, I'm short of words, a very dear friend and voice of all reality shows in India, including Big Boss, Vijay Vikram Singh. I think इनका तो बस नाम ही काफी है. He is a dynamic motivational speaker renowned for his engaging presentation at TEDx, various universities, to name a few like IIT Guwahati, I'm Indore, University of Leeds, University of College Birmingham, I'm Indore, including and other corporates gatherings, which includes SBI, FICCI Flow, etc., both in India and abroad, with a focus on the importance of failure and exploration in life. Vijay shares powerful insights drawn from his own experiences, illustrating how failures could be a stepping stones to success. तो हमारे बुजुर्गों ने सही कहा है कि failures are stepping stones for something which you want to do in future. He is a compelling storytelling. His compelling storytelling style, combined with warmth and authenticity, creates a strong connection with audience, often leaving them inspired and spellbound. Today, we have him for our masterclass series inaugural session, Dream to Reality, Finding Your Purpose and Staying Motivated. जीतो लेडीज विंग और जिफ की तरफ से हम चाहते हैं कि आप ये सेशन स्टार्ट करिए. कैन वी हैव अ बिग राउंड अप्लॉज फॉर विजय? Vijay, the stage is all yours, and I'm sorry I have a bad throat today. Not in the best of the form, but I would request you to. Vijay ji is also here, so Vijayji Bhandari Hanji. is there. Yeah. Vijayji Bhandari, I welcome you. We need a little like it's my honor to invite you as a leader of immense wisdom and vision, the president of Jito Apex. Vijayji's leadership and foresight continue to inspire and uplift our community. We welcome you, Vijayji. Two words from you, Vijayji Bhandari. जय हिंद सभी को वेरी वार्म एंड हैप्पी इवनिंग टू यू ऑल. मैं स्पेशली थैंक्स दूंगा यहाँ पर आज आपके इस जूम मीट के अंदर जेएलडब्ल्यू की चेयरपर्सन शीतल जी दुगर यहाँ पर है, रितु जी यहाँ पर है, उसके साथ साथ अनीता जी पिरगिल, शी इज ऑल्सो देयर, एंड विजय जी यू आर देयर. विजय मीट्स विजय, दैट्स ग्रेट थिंग सर. विजय जी ग्रेट सर. एक सीरीज आप लोगों ने जो शुरू की है वो बहुत ही जबरदस्त ऐसी महत्वपूर्ण सीरीज आप लोगों ने शुरू की है, एंड इट विल बी फॉर द कमिंग 7 days and different speakers you are calling and you are going to motivate the people. I'll tell you one thing, that the women's power is the biggest power in the country right now, and if they contribute to the country, we can go on the first step what our Prime Minister Modi thinks about it. So I really thank you from my bottom of the heart to all the JLW team for taking the initiative and starting this series, and this will carry on. And Vijay ji, I 100% I know that you'll motivate all of them and you will take them to the different step. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Vijayji, for your motivational speech. And thank you, Prachi, also for the introduction of our speaker. Now, I'm delighted to welcome our keynote speaker, Shri Vijay Vikram Singh, the renowned voice narrator of Big Boss and a TEDx and motivational speaker.
Sri Vijay ji will share his insights and experience in today's masterclass session. All yours, Vijay ji. Thank you, Anita ji. Thank you, Prachi, for inviting me. Thank you, Vijay ji, for the kind words. Thank you, Mahavir ji, for the kind words. And thank you, everyone, for taking out time and attending this. I was just going through the Zoom page and I realized that there are 7 pages. So there are more than 100 participants in this Zoom meet, which is amazing. So I'm very happy that there are so many people to listen to me. अभी मेरा बेटा बगल में खड़ा हुआ था, मैं यही सोचा उसको बताऊं कि देखो इतने सारे लोग मुझे सुनने के लिए आए और तुम मेरी नहीं सुनते हो। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर घर की कहानी। जी जी जी, घर घर की कहानी। मैं पहले तो सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, एंटरप्रेन्योर्स की और मेरी जर्नी में ऐसा क्या कॉमन है। फिर मुझे एहसास हुआ कि बहुत कुछ कॉमन है। एक्चुअली मैं भी एक एंटरप्रेन्योर ही हूँ। सोलोप्रेन्योर वुड बी द राइट वर्ड, जहाँ पर मैंने एक करियर डिसीजन लिया एट अ वेरी यंग एज ऑफ 30 years, दैट MBA करने के बाद नौकरी करते हुए, सरकारी नौकरी करते हुए मुझे अपने अंदर की एक काबिलियत का पता चला कि मेरे अंदर आवाज़ रूपी एक काबिलियत है और उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एज अ करियर। वहाँ से एक अलग जर्नी शुरू हुई और फिर मुझे एहसास हुआ कि एक एंटरप्रेन्योर की भी तो जर्नी ऐसे ही होती है ज़्यादातर। लाइफ की एक स्टेज पर आपको एक आइडिया आता है और आप फिर उस आइडिया को, जब वो आइडिया कन्विक्शन के साथ आता है, तो आप उस आइडिया को लेकर आगे बढ़ते हो और उसके अराउंड एक बिजनेस सेटअप करते हो। तो हमारी और आपकी जर्नी बहुत सिमिलर है और मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी की कहानी बताऊंगा और उसी के अंदर इतना कुछ है जो कि मैंने खुद सीखा है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग उससे 10% भी उन चीज़ों को सीख पाएं जो मैंने गिर के सीखी हैं, तो हम सबकी जर्नीज बहुत आसान हो जाएंगी और हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि इस जर्नी में कई इमोशंस, कई सेटबैक्स, कई एक्सटैटिक मोमेंट्स ऐसे आते हैं जो आपकी भी जिंदगी में आए हैं, आएंगे, आए होंगे और मेरी भी जिंदगी में आए। जॉन एलिया एक बहुत ही कमाल के शायर थे। मैं पिछले 3-4 साल में ही उनको समझ पाया, पढ़ पाया, सुन पाया। बहुत ही रेवोल्यूशनरी शायर, 2 पंक्तियों में ऐसी कमाल की बातें कह देते हैं। तो वो कहते हैं कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। मैं वो हूं जो हादसे से गुजर कर आया हूं। मैं वो हूं जिसने जिंदगी में कई लेसन्स दूसरों की गलतियों से नहीं लिए, खुद गलती करी और उस गलती को हादसे के मुकाम तक लेकर गया और वहां पर जाकर मैंने सीखा। मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको वहां तक जाने की जरूरत ना पड़े। उससे बहुत पहले कहीं पर अगर हम अपनी सीख ले लेंगे तो हम बहुत सारी परेशानियों से और कष्टों से बच पाएंगे। मैं अभी IIM रोहतक में था सैटरडे को। उनका एक फेस्ट होता है, इन्फ्यूजन, हर साल। तो इन्फ्यूजन 2025 में आई वाज लकी इनफ टू बी इनवाइटेड बाय IIM रोहतक। उससे पहले सितंबर में आई वाज इन IIM इंदौर कंडक्टिंग वर्कशॉप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स वर्कशॉप। 4 वर्कशॉप मैंने IIM इंदौर में करी। उससे पहले मार्च में मैं IIT गुवाहाटी में था और उन सब जगहों पर मैंने एक बात तुम सबको ये बताई थी कि आपका आज आपके कल को नहीं डिफाइन कर सकता। यू हैव द पावर टू चेंज इट, योर करंट सिचुएशन, इन फ्यूचर। तो अगर आप आज कुछ हैं तो उसको डिफाइन ना करने दीजिए। और क्यों, उसका मैं एग्जांपल और रीजन आपको बताता हूँ। सन 2002 में, उससे पहले की भी कुछ कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। वो फेलियर से जुड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले ये वाली कहानी सुनिए। सन 2002 में कैट में मैंने अपेयर किया, जो कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, अभी भी होता है मेरे ख्याल से, फॉर एडमिशन इनटू IIMs, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। IIMs और सभी MBA कॉलेजेस के लिए एक कंबाइंड टेस्ट होता है जिसको कैट कहते हैं। तो कैट 2001 में मैं अपेयर हुआ था और 2001 के ही कैट से उन्होंने स्कोर्स देना शुरू किए थे। उससे पहले तक स्कोर्स वो देते नहीं थे। एक एक अंदाज़ा बता देते थे कि ये इनका कट ऑफ ये है और आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपको कॉल आ गया है तो मतलब उस कट ऑफ के ऊपर है आपका, तो आप अंदाज़ा लगा सकते थे। आपको स्कोर्स नहीं मिलते थे। 2001 ऑनवर्ड्स कैट स्टार्टेड गिविंग आउट स्कोर्स। मेरा स्कोर था 93 परसेंटाइल। 93 सुनने में बहुत अच्छा लगता है। 93 परसेंटाइल इज पथेटिक।
मतलब अगर आप IIM एम कर रहे हैं तो पथेटिक स्कोर है, बिकॉज IIM के जो सर्वेंट क्वार्टर में भी अगर कोई इंस्टीट्यूट चल रहा होगा तो वहाँ से भी आपको नहीं कॉल आने वाला 93 परसेंटाइल में। मुझे कॉल नहीं आया, किसी भी IIM से नहीं आया, किसी भी अच्छे कॉलेज से नहीं आया। मैं थैंकफुल हूँ FMS BHU का, BHU से मुझे थैंकफुली कॉल आ गया और मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया और MBA कर लिया। खैर, उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, हालांकि मेरी गलती थी, क्योंकि मैं उस समय कुछ एक अलग दौर से गुजर रहा था, डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म के। तो मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए ये स्कोर 93 परसेंटाइल रह गया। लेकिन आज वही 93 परसेंटाइल वाला जो उस समय लड़का था और आज एक मिडिल एज मैन हो गया है, उसको IIMs और IITs वाले बुलाते हैं वर्कशॉप कंडक्ट कराने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जिस IIM में मैं एज अ स्टूडेंट नहीं जा पाया, वहाँ आज मैं लेक्चर देने जाता हूँ। इसमें मेरी कोई वो नहीं है, खासियत नहीं है। मैंने बस कुछ चीज़ें बदली हैं। उनमें से एक चीज़ जो बदली वो थी मेरा माइंडसेट। उस दौर में जो 2001 में जब मैं कैट में अपियर हो रहा था, 99 से लेकर 2004 तक का जो दौर था मेरी ज़िंदगी का, इट वाज द डार्केस्ट आवर ऑफ माय लाइफ, बिकॉज आई लेट वन फेलियर डिफाइन मी एज अ पर्सन। और मैं चाहूँगा कि आप कभी इस बात को गांठ बांध लें कि ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जो आपके साथ निरंतर चलेगी, वो है सफलताएं। असफलताएं, फेलियर, जिनको हम फेलियर्स कहते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में एक्चुअली फेलियर होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर। ये बात अगर मैंने समझ ली होती तो बहुत सारे कष्टों से बच जाता, लेकिन अगर ये बात मैंने 20 साल 25 साल पहले समझ ली होती तो शायद आपके साथ ये संवाद ना हो रहा होता, क्योंकि वो फेलियर नहीं मिलता और मेरा जिंदगी का रास्ता कुछ और होता। तो फेलियर मैंने ये रियलाइज किया, तो मेरे साथ हुआ क्या था कि मैं फौज में जाना चाहता था, लेकिन और मैंने बचपन से ही सोचा हुआ था कि आई एम गोइंग टू बी एन आर्मी ऑफिसर, और मैंने उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं। तो NDA में नहीं मेरा हुआ, तो NDA इज आफ्टर 10+2 एंड कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन इज आफ्टर योर ग्रेजुएशन। तो जब NDA में नहीं हुआ तो भी मेरे पास उम्मीद थी, मैंने कहा अरे अभी तो ग्रेजुएशन करके फिर CDS लिखेंगे, CDS के बाद SSB में जाएंगे। जब रिटर्न क्लियर नहीं हुआ उसने मुझे उतना नहीं तोड़ा, लेकिन रिटर्न क्लियर होके CDS में जब मैं इंटरव्यू के लिए गया और इंटरव्यू में मैं पहली बार रिजेक्ट हुआ, तब मेरे सामने वो स्थिति आ गई जहां पर मुझे पता नहीं था कि व्हाट टू डू इन लाइफ, because the only thing that I aspired for, the only thing I wanted to become, suddenly I realized that I'm not good enough to be that. Because interview में reject होना के मतलब there are certain qualities that they see in a candidate, वो qualities आप में नहीं है या आप उस समय वो qualities नहीं दिखा पाए। मैंने उस failure को, I took it as a failure of my ability as a person. आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ, और वहां से मेरा बहुत बड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ। अगले 5 साल मैंने डिप्रेशन में गुजारे। एक ही अच्छी चीज करी कि मैंने प्रयास करना बंद नहीं किया, और ऐसा पागलपन था मेरे अंदर कि उसके बाद मैं 7 SSB में और रिजेक्ट हुआ हूँ। तो मैं 8 बार टोटल आर्मी से रिजेक्ट हुआ हूँ, और हर रिजेक्शन अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा थोड़ा तोड़ता चला गया। आई बिकेम सो डिप्रेस्ड दैट आई कंप्लीटली बिकेम एन अल्कोहलिक। मैं आज मुझे लोग मिलते हैं, लोग कहते हैं अरे मैंने 3 दिन से दारू पी रहा हूँ और मुझे लगता है मैं अल्कोहलिक हो गया, और मैं उनको कहता हूँ कि भाई तुम्हें पता भी नहीं है कि अल्कोहलिक होना क्या होता है, सो डोंट यूज दैट टर्म सो लूजली। आई यूज टू एंड माई डे जब तक कि मैं गिर ना जाऊं पी के, और इतना बस होश रहता था कि इतनी सी बच जाए ताकि सुबह जब उठे तो वॉशरूम जाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए मैं उतनी सी दारू पी के फिर जाऊं। और लोग पीने के बाद होश खोते हैं, मुझे पीने के बाद होश आता था। दैट इज अल्कोहलिज्म एट इज वर्स्ट, बिकॉज आई ट्राई टू फाइंड द क्योर ऑफ माई डिप्रेशन इन अल्कोहल। और डिप्रेशन और अल्कोहलिज्म या डिप्रेशन और कोई भी नशा इज अ श्योर शॉट रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये बातें उस समय बहुत लोगों ने मुझे बताई, लेकिन मेरी समझ में जब बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है, मति मारी जाती है, शनि का 7.5 चल रहा होता है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। मेरे लिए सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई थी। आई वॉज अ रिबेल विदाउट अ कॉज। वाई? जस्ट बिकॉज आई लेट वन फेलियर डिफाइन मी एज अ पर्सन। और यही गलती हम एज एन एंटरप्रेन्योर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बहुत क्लोज होते हैं उसका झटका हमें ज़्यादा बुरा लगता है। किसी से मोहब्बत करते हो और वो हमें नकार दे
तो वो दुख बहुत बड़ा होता है, बजाय इसके कि किसी को ऐसे ही चलते फिरते हमने कह दिया और उसने हमारे हेलो हाय का जवाब नहीं दिया, तो वो उतना नहीं दुख होता है, राइट? तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी ये चीज़ है कि आप अगर फेल होते हैं तो आपको लगता है कि ये तो हमारा सपना था और ये टूट रहा है। नहीं टूटेगा, अगर आप चाहेंगे तो नहीं टूटेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट फेलियर्स आर नथिंग but a way and a mean to know how not to do a particular thing. जब हमारे एडिसन एडिसन थॉमस अल्वा एडिसन साहब से पूछा गया कि आप यू आर सच अ सक्सेसफुल इन्वेंटर, आपने बल्ब बनाया, पर आप दो दो 2,500 बार फेल हुए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार भी फेल नहीं हुआ। मुझे सिर्फ उन 2,500 बारों में ये पता चल गया कि ये वो तरीका नहीं जिससे बल्ब बनना चाहिए। So, our perspective to failure has to change if we want to succeed in life, especially as an entrepreneur. Why? Because in most of the cases, in a lot of the cases, बहुत generalized हो जाएगा, but a lot of the cases, the journey of entrepreneurship is a singular journey. आप अकेले चल रहे होते हैं, कई बार सपोर्ट नहीं होता है। तो जैसे आप कोई अगर वो काम कर रहे हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल है, तो अगर आप गिरते हैं तो आपको उठाने के लिए बहुत लोग आते हैं, ये कहने के लिए कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, डोंट वरी, एक बार और कोशिश करो। पर कुछ काम अगर आप ऐसा कर रहे हैं जो लीक से हटके है, तो लोग खड़े हुए हैं ये पॉइंट आउट करने के लिए, देखो देखो गिर गई गिर गई, देखो देखो गिर गया गिर गया, हम तो कह रहे थे हम तो कह रहे थे हम तो कह रहे थे, ये बना ही नहीं है, ये तो बनी नहीं इसके लिए। सो डिस्करेज करने वाले इस जर्नी में आपको बहुत मिलेंगे, आपके हर एक फेलियर पर। But from today onwards, if you already do not already know this, please know and understand that there's nothing called failure in life. आप यहां से चले हैं, यहां पहुंचना है, और यहां पर आकर कहीं अगर आप गिर गए तो आप फेल नहीं हुए हैं, यू हैव गेन्ड एक्सपीरियंस। दिस जर्नी, यहां से यहां तक का जो सफर है वो आपका अनुभव है, दैट इज योर एक्सपीरियंस। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, इफ someone asks you, you failed, you have to tell them, no, I just gained experience. I just gained an insight of how not to do a thing in one particular way. अब मैं दूसरे तरीके से ट्राई करूंगी, क्योंकि ये जो चीज है फेलियर, ये आपका कांस्टेंट कंपेनियन है। एक निदा फाजली साहब का शेर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है, राइट? अपने आप में बड़ी खूबसूरत, अपने आप में बड़ी खूबसूरत शेर है कि लाइफ की फिलॉसफी है कि जो मिल जाता है उसकी कदर नहीं है, जो नहीं मिलता है वो हमारे लिए सोने के समान है, कि हाय वो नहीं मिला, हाय हाय। तो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। और ये जो दूसरा शेर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गम हो या खुशी दोनों ही, गम हो या खुशी दोनों ही बस कुछ देर के ही साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, हंसना है न रोना है। Now, why this is important is success or failures are just milestones. What is important is the rasta, the path, the process. So if you have defined your process, then you should not be bothered about whether you've succeeded or you failed. You just have to go back and see कि उस रास्ते में आपने जो जो सफर जो तय किया है उसमें क्या अनुभव ऐसे मिले हैं जिसको आप इम्प्लीमेंट करके सफर पे फिर से निकल सकते हैं, उसको बेटर कर सकते हैं। द एंडेवर ऑलवेज हैज टू बी जस्ट टू बेटर योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, जस्ट टू बी बेटर देन योर लास्ट एक्सपीरियंस, दैट इज इट। यहां पर गीता का, भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक हमेशा याद रखिएगा। हम लोग जब सुनते हैं, हम पहले जब सुनते थे तब हमें लगता था कि यार ये ज्ञान तो मोक्ष के बाद का ज्ञान है, ये तो बुढ़ापे का ज्ञान है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतुर्भु मा ते संगोत्सवितर्मणे, कि कर्म
जो है वो उसी पर आपका अधिकार है। इसलिए कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। हमें लगता है कि ऐसा कैसे यार, ये तो फल की चिंता मत करिए, ये तो साधु संत वाली बात हो गई। इससे ज़्यादा साइंटिफिक एडवाइस कोई नहीं हो सकती। और आज वो एडवाइस आपके बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े अचीवर्स उसको फॉलो करते हैं। तो जब हम कर्मण्येवाधिकारस्ते कहते हैं तो लोग कहते हैं ये भगवत गीता का ज्ञान है, ये तो बुढ़ापे का ज्ञान है। पर जब महेंद्र सिंह धोनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहते हैं कि आई ऑलवेज टेल माई बॉयज टू फॉलो द प्रोसेस एंड नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ही इज टॉकिंग अबाउट द सेम फिलॉसफी ऑफ भगवत गीता. When Roger Federer, in his acceptance speech in University of Dartmouth, when he says that I've played 1,526 professional matches and I have won 80% of them, but in those 80% of the matches that I won, I've only won 56% of the points of those 80% of the victories. Then what is he saying? What is he trying to tell you? That winning or losing a point is just a point. यू डोंट गो टू एक्सटैटिक कि मैं एक पॉइंट जीत लिया तो बस उसके बाद कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, चढ़ गए जो है कोर्ट की छत पे चढ़ गए और वहां से कूद रहे हैं। नहीं, इट्स जस्ट अ पॉइंट। जीता, थोड़ा सेलिब्रेट किया, फोकस इज ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, because you have to focus on the next point if you want to win. It's not about the point, it's about the match, it's about your career. तो जिंदगी भी ऐसी है। अरे मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। लाइफ इज ऑल, बिकॉज ये चीजें ना बड़ी गिर के और चोट खा खा कर, परेशानियां सहकर और लोगों को परेशानियों में डालकर सीखी हैं। भाई आप डिप्रेस हो रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो आप तो मजे कर रहे हैं, तो आपको तो हक है कि आप अस्पताल में भर्ती हो। लेकिन आपके इन बेवकूफ़ियों की वजह से आपके पेरेंट्स को परेशानी क्यों हो, आपके भाई को परेशानी क्यों हो, आपके बहन को परेशानी क्यों हो? लेकिन हुई, मेरी इस मूर्खता ने उन सब को परेशानी में डाला। इस छोटी सी समझ के पैदा ना होने की वजह से इतने सारे लोग परेशानी में आ गए। तो जब हम सफ़र करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास सफ़र करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को हम समझें कि हम नहीं समझ पाते हैं। शायद इसका एक कारण ये भी है कि वी एज अ सोसाइटी वी सेलिब्रेट सक्सेस अ लॉट। कितने नंबर आए, 90% आए कि नहीं आया, 100% आया कि नहीं आया। और रिपोर्ट कार्ड में भी अब तो चेंज हो गया, पहले तो फेल लिख दिया जाता था ना, FAIL, FAIL या F लिख दिया जाता था। सो आई थिंक ये एक कारण है, वन ऑफ द रीजंस व्हाई फेलियर हैज बिकम सच अ नेगेटिव वर्ड इज बिकॉज हमने शुरू से ही फेलियर को जोड़ा है कि हम तो कुछ नहीं आता, हम तो गधे हैं। जबकि समझाना हमें लोगों को, बच्चों को ये चाहिए कि बेटा डू फेल, गिव योर 100%, एंड इफ आफ्टर दैट you're failing, it's perfectly fine. Or rather, to keep telling, like, it's not easy, especially in this day and age. My daughter is 10 years old. I don't generally get involved in her academics, but कभी कभी ऐसा होता है जैसे वो किसी डिबेट या एलोक्यूशन में जाती है कॉन्टेस्ट में, तो शी wants my help. She thinks that I am a good speaker, तो वो कि हमको मुझे just guide me how I can, better my speech and all of that. And the only thing I keep telling her is that yes, I help her. Yes, I make her uh, practice, and I make her do practice those speeches multiple times, and that is what I tell her to learn. That the process is important. When you go on stage, you should not be worried about results. Now, the problem with this not being comfortable with failing or being too focused on the result is कि it hampers your performance. आपको पता है मैं 2023 में मैंने एक आपको कैसे पता होगा, मैंने बताया ही नहीं है। तो 2023 में मैंने एक इवेंट होस्ट किया था। उस इवेंट में क्या हुआ था कि 2023 में माउंट एवरेस्ट की कॉन्क्वेस्ट को 70 साल पूरे हुए थे। तो दे वांटेड टू कमेमोरेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट, सो दे इनवाइटेड 14 माउंटेनियर्स। और उनकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन ये थी कि उन सब के 14 ने माउंट एवरेस्ट एक बार कॉन्कर किया है, और उसके अलावा टॉप 7 माउंटेन पीक्स में से एक माउंटेन पीक और
उन्होंने कॉन्कर की हुई है। तो दे हैव कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट प्लस वन पीक मिनिमम। उन सब की जो 14-14 मिनट की स्पीचेस हुई, उन सब में एक चीज कॉमन थी, विच वॉज दैट व्हेन दे गो ऑन द बेस कैंप, एक जैसे माउंट एवरेस्ट तो नहीं दिखता है बेस कैंप से, तो एक बार वो दे विजुअलाइज एंड think about the peak, think about the summit, and then they forget it. After that, it's only one step at a time. And that is why भगवत गीता का जो दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, वो दुनिया की सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस है। वो इसीलिए है क्योंकि जब आप कर्म कर रहे होते हैं, तब आपको फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप फल के बारे में सोचते हैं तो वो आपके अंदर एंजाइटी पैदा करता है। क्यों? क्योंकि फल के बारे में सोचना इनवेरिएबली आपको फियर ऑफ फेलियर के पास ले जाता है। When you start thinking about the result, the one thing that is is most definitely going to come to your mind is the fear of failure, and the fear of failure will make you anxious, और anxiety आपकी बॉडी में आपके पीक परफॉर्मेंस को हमेशा हैम्पर करेगी। तो रिजल्ट के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, फेलियर को अपना लीजिए, ये मान लीजिए कि ये एक ऐसा आ, दोस्त है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। दोस्त इसलिए क्योंकि हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। प्लीज रिमेंबर दैट सक्सेस बूस्ट्स ईगो, फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। इट्स नॉट, और ये जो आपने ये सब सुना होगा कि इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू फॉल बट हाउ well you get up and how quickly you get up and start again. That is what matters, which is so true. गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। आपने ये सब पढ़ा होगा ना कि वो ships are safe at the harbor, but that's not where ships are meant to be. We are destined to achieve greater things in life only if we get out of our sense of security. हम बहुत ज्यादा किस चीज को चेज करते हैं? सिक्योरिटी को। एंड सिक्योरिटी इज द एनिमी ऑफ पॉसिबिलिटीज। जैसे ही आप सिक्योरिटी की तलाश करने लगते हैं, जो कि हम लोग होता है ना, जब सिखाया जाता है बेटा नौकरी कर लो, सिक्योर है, सेफ रहोगे, सरकारी नौकरी कर लो, कम से कम सेफ रहोगे। आजकल तो खैर सेफ दुनिया में कुछ है ही नहीं, पर ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये दिस इज अ प्रॉब्लम। And we unfortunately grow up in this thought process. We have all grown up in this thought process. तो हमारे मन में बहुत ingrained है, इसीलिए there's a lot of resistance and so many entrepreneurs in this forum, आप सब इस बात से आइडेंटिफाई करेंगे कि जब पहली बार आपने वो कदम लिया होगा तो आपको बाहर से तो रेजिस्टेंस जो मिला वो मिला, खुद से भी बहुत रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैं, when I finished my MBA, I was one of the 10 people who was placed from the campus. फिर उसके बाद एक साल बाद ही आई गॉट अ जॉब विद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी नौकरी लग गई। और यही वो समय था जब मैं आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द आर्ट ऑफ वॉइस एक्टिंग। 1.5 साल मैं यही सोचता रहा कि क्या करना है, कैसे करें। ये तय हो गया था कि अब मुझे वॉइसिंग करनी है, कैसे करें उस पर मैं फोकस कर रहा था। मैंने ट्रेनिंग भी कर ली। फिर ये रियलाइज़ हुआ कि अब अगर मुझे आगे बढ़ना है इस फील्ड में तो मुझे सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने सोचा नहीं, मैंने छोड़ दिया। I quit my government job. I took up a job in a private radio station in the sales team, ताकि मुझे मीडिया की समझ आ जाए और मुझे वड़ा पाव खा के स्ट्रगल ना करना पड़े। तो वहाँ पे मैंने नौकरी करी 2.5 साल। मीडिया सेल्स, इसमें से जिन लोगों ने किया हुआ उनको पता होगा कि कितना मुश्किल काम है, स्पेशली उस आदमी के लिए जो सरकारी नौकरी से आ रहा है, जिसके टेबल पर सीएफओज और एमडीज आके बैठते थे कि साहब हमारा माल रिलीज कर लीजिए, एलसी जो है परसों आ जाएगी आपके पास। 2.5 साल मैंने वो कठिन जिंदगी गुजारी only because of that vision, only because of that
कन्विक्शन कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं ये करूँगा तो है ही है. एंड देन ऑफ कोर्स थैंकफुली व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड आई टोल्ड माय वाइफ. सो ये सपोर्ट होना भी देखिए कितना ज़रूरी है. व्हेन आई टोल्ड माय वाइफ शी सेड जो करना है अभी कर लो. आई एम वर्किंग and we don't have responsibilities. This is such a good time. Come on, go and explore. So 2009 में मैंने वॉइसिंग शुरू करी एज अ फुल टाइम करियर एट द एज ऑफ 32 एंड हाफ. लेडीज, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. आपकी भी जर्नी में एक चीज़ जो आती रहेगी वो है सेल्फ डाउट. हर बार जब आप गिरोगे ना तो आपको सेल्फ डाउट आएगा. मुझे आज तक आता है. प्रॉब्लम उस थॉट के आने में नहीं है. वो थॉट, इट्स ह्यूमन नेचर, इट विल कीप कमिंग. प्रॉब्लम है अगर हम उस थॉट को इंपॉर्टेंस देके उसको एक्सेप्ट कर लें. कन्विक्शन अगर है, then no self doubt should let you stop. जब से so at the age of 32 and a half I started doing voiceovers. 10 years after that I did my first show as an actor. So at the age of 42 I started acting. आज 4 साल हो गए एक्टिंग करते हुए. 118 ऑडिशन दे चुका हूं मैं. 9 वेब सीरीज की हैं, 3 फिल्म्स करी हैं. 12 चीजें, जिसमें से 2 फिल्म्स रिलीज होंगी इस साल और 3 वेब सीरीज रिलीज होंगी. मोर देन 90% फेलियर रेट है मेरा. मोर देन 90%. मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स आई हैव फेल्ड इन माई ऑडिशंस. और उन 90% बार जब मैं फेल हुआ हूं उसमें 100% ऑफ द टाइम्स आई हैड सेल्फ डाउट कि मैं कर भी पाऊंगा एक्टिंग कि नहीं कर पाऊंगा. बट वो कन्विक्शन कि नहीं, अगर यहां तक आ गए हैं तो कर तो लेंगे, that has kept me going and that has to keep you moving forward. Please don't let those failures and self-doubt become so strong that they start defining you. अगर यहां तक पहुंच गए तब फिर there is no looking back. लेकिन at the same time there's another powerful thing that we must keep with us, which is the power of letting go. जिंदगी दो अलग अलग खूबसूरत शेरों के बीच में है. एक शेर है कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की, और यकीन है हमें ये जंग जिद जीत जाने की. तो ये हो गया कन्विक्शन कि नहीं, जिद. लेकिन जिद की भी एक सीमा होती है. किसी न किसी पॉइंट पर अगर वो जिद आड़े आ रही है ऑब्जेक्टिविटी के तो जिद छोड़नी पड़ती है. और वहां पर हमको परवीन शाकिर की इन इन पंक्तियों को याद रखना है कि मलाल है. मलाल मीन्स रिग्रेट. मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है. ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं. मजा तो तब है कि हम हार के भी हंसते रहें. हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है. सो लेडीज, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट विनिंग ऑलवेज. समटाइम्स taking a step back also matters. मैं वो गलती कर चुका हूं. जिद जिद, फलक को जिद है, यही सोच सोच के नहीं, जिद है मैं जाऊंगा, मैं फौज में जाऊंगा. जब वो चीज नहीं आपके कंट्रोल में है तो देन एट सम पॉइंट इन टाइम यू हैव टू लेट इट गो ऑल्सो. आई कीप कमिंग बैक टू भगवत गीता का श्लोक. क्यों भगवत गीता ये कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म ही प्रधान है, बाकी और कुछ नहीं आप कर सकते. क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं एक छोटी सी फॉर्मूला लिख दूं कि x + y = z, ये आई होप इट कैन बी सीन Yeah, it is. We can see it with it. ना. ओके, सो ये है फाइनल रिजल्ट जो आपको चाहिए, मनवांछित फल जो आप चाहते हैं. ये है आपका एफर्ट, पर इसमें एक y भी है. दिस इज द अनकंट्रोलेबल. दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल. सो आपके एफर्ट और आपके रिजल्ट के बीच में ना एक अनकंट्रोलेबल होता है.
एक ऐसी चीज जिस पर आपका कोई बस नहीं है, आप कुछ भी करके उसको अपने पक्ष में नहीं कर, वो अगर पक्ष में है तो है, नहीं है पक्ष में तो नहीं है। गए आज एग्जाम देने, 3 पेन लेकर गए थे और 3 के 3 पेन चलना बंद हो गए। किसी से पेन बोरो करके लिख रहे हैं। अब आप सोचिए ना कि आप 100% एम करके गए थे, और उस एक पेन के चेंज होने से अगर आपकी 5% भी एफिशिएंसी कम हुई तो आप 100 से 95 पे आ गए। पर वो क्या, वो 5% आपके कंट्रोल में था? नहीं था। आपने सब कुछ कर लिया था, चेक करके गए। मैं 2 शर्टें रख के गया, अभी अभी किसी कॉन्फ्रेंस में मैं गया था, 2 शर्ट और उसके साथ एक जैकेट रख के गया। देखा वहां जाके कि दोनों शर्ट में एक में बटन नहीं था, एक में दाग लगा हुआ था। मैंने अपने हिसाब से चेक कर ली थी शर्ट कि हाँ ये तो ठीक है, पर आप पूरा खोल के थोड़ी ना चेक करते हो। एक आध बार कॉफी गिर गई है तो अनकंट्रोलेबल है। तो ये तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। लाइफ में देर आर सो मेनी टाइम्स, देर आर थिंग्स दैट जस्ट हैपन एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट। It's how you focus on the process. You keep your mind simply, focused on the effort, which is going to lead you eventually to a result which will be to your liking. और रिजल्ट टू योर लाइकिंग से मैं एक और बात पर आना चाहता हूं। कई बार जब हमारे अनुसार चीजें नहीं हो रही होती हैं तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमको समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे साथ क्यों हो रहा है। आपने सिचुएशन या तो खुद देखी होगी या इस सिचुएशन में अपने आसपास वालों को देखा होगा, यार मुझे समझ ही में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या करें। कभी कभी लगता है कि सर ही फोड़ लें, जान ही दे दें, समझ में नहीं आता है। ऑल ऑफ दैट यू मस्ट हैव हर्ड। तो चलते रहना बहुत जरूरी है, और एक पॉइंट के बाद छोड़ देना कि हम बड़ी पिक्चर शायद नहीं देख पा रहे हैं, शायद हम बहुत छोटी चीज पे फोकस कर रहे हैं और यूनिवर्स हमको कुछ बड़ा देना चाहता है, इसलिए हमको ये छोटी चीज नहीं मिल रही है। इसकी कहानी आपको सुनाता हूँ। व्हील बैरो एक चीज होती है, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती है। एक पहिया होता है उसमें और 2 डंडे होते हैं, और उसको आप बस पकड़ के भारी सामान खींचने के लिए यूज किया जाता है फैक्ट्रीज में। एक फैक्ट्री में एक आदमी एक व्हील बैरो पे एक इतना बड़ा डब्बा लेके जा रहा होता है। सिक्योरिटी वाला उसको रोकता है, बोला तुम ये क्या डब्बे में क्या लेके जा रहे हो? बोले साहब लकड़ी की फैक्ट्री है, इसमें बुरादा निकलता है, मैं बुरादा भर के ले जा रहा हूँ, घर में काम आएगा। बोले दिखाओ। वो डब्बा देखता है, हाँ बात तो सही, डब्बे में पूरा छान लेता है। बोला कुछ नहीं मिलता, बुरादा ही है। बोले बुरादा किस काम का, ले जाने तो जाओ। दूसरे दिन देखता है वो आदमी फिर वही व्हील बैरो पे एक डब्बा लेके जा रहा है, और डब्बे में फिर वही बुरादा। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन सिक्योरिटी वाला कहता है देखो, मैं 25 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ये तो जानता हूँ कि तुम कुछ चोरी कर रहे हो, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं हार मानता हूँ, मुझे लेकिन बता दो तुम चुरा क्या रहे हो। बोला साहब ये मेरा 7वां व्हील बैरो है जो मैं चुरा के ले जा रहा हूँ। तो हाँ, उसका फोकस तो था डब्बे पे, डब्बे के अंदर के बुरादे पर वो ये भूल गया कि वो डब्बा जो है व्हील बैरो पे जा रहा है। हम भी नहीं देख पाते हैं व्हील बैरोस को अपनी लाइफ में। हम कई बार उन डब्बों पे ही फोकस कर लेते हैं जो, उन डब्बों में जनरली फेलियर्स होते हैं, उन डब्बों में जनरली वो रिजल्ट्स होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि अरे ये तो व्हील बैरो भी है हमारे साथ में भाई। ये व्हील बैरो भी काम की चीज़ है, मतलब वो बड़ी पिक्चर हम नहीं देख पाते हैं। तो कभी कभी इट्स 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 ओके टू जस्ट ट्रस्ट द ऑलमाइटी। इट्स ओके टू रिमेम्बर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो और भी अच्छा। देखिए हमारे मन का नहीं हुआ, हम फौजी बनना चाहते थे, फौजी अगर बन गए होते तो आज कर्नल होते। कर्नल बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे बड़ी खुशी होती। पर आज ज़्यादा खुशी हो रही है जब 100 से अधिक विमेन एंटरप्रेन्योर्स को मैं बात कर पा रहा हूँ। मेरे सोशल मीडिया फीड पर हर दिन ये मैसेज तो आता ही आता है कि वी लव योर वॉइस, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई एम फ्रॉम यूके, आई एम फ्रॉम यूएस, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो ये मैसेज पढ़ के अच्छा लगता है। तब समझ में आता है, अच्छा मन का नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। और जब ये मन का नहीं हो रहा था ना, तो इन्हीं ईश्वर से, इन्हीं भगवान से बड़ी लड़ाइयाँ हुई हमारी, है ना। तो ये ट्रस्ट करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। कि अच्छा, ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप
you're not allowed to feel negative or you're not allowed to feel low. एक और जो नॉनसेंस जो बहुत फैलाई जाती है कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब ये थोड़ी कि हमेशा हमेशा। बी पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम इतने मैच्योर हैं कि हम नेगेटिव इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम उनको फील भी कर रहे हैं, बस हम उनको पकड़ के नहीं बैठ रहे हैं। आज मुझे थायराइड है पिछले 12 साल से, बहुत बुरा वाला थायराइड है अभी। अब दिन में ऐसे कई, थायराइड में प्रॉब्लम ये होती है कि वो बड़े उतार चढ़ाव लाता है, मूड्स बहुत ख़राब हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मेरे फैमिली हिस्ट्री है बाइपोलर डिसऑर्डर, माय फादर हैड बाइपोलर डिसऑर्डर, और मेरे ताऊजी वगैरह डिप्रेशन के बहुत वो रहे, तो फैमिली हिस्ट्री भी है डिप्रेशन की। तो मेरे दिन में मैं 2 बार तो कम से कम ऐसा होता ही है जब मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है। ऐसी स्टेट होती है कि अरे मतलब द वर्ल्ड इज एंडिंग फॉर मी। अब वहां पे मैं अपने आप को अगर गोली मार लूं तो दैट विल बी स्टूपिडिटी ना। आई हैव रियलाइज्ड एंड आई हैव मेड पीस विद इट कि ये मेरे साथ होगा दिन में। अब मुझे थायराइड है तो मेरे साथ ज्यादा होता है, जिनको थायराइड नहीं है उनकी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उस समय जब उतार आ रहा होता है तो ये कई बार होता होगा, आप सुसाइडल भी फील करते हो। इट्स ओके। व्हाट इज नॉट ओके इज टू स्टे इन दैट थॉट। उसको ब्रश असाइड करना इज नॉट ओके। आ रहा है ना, रोना आ रहा है, नहीं सबके सामने रोना है, बंद कमरे में, लेकिन रोए। रोना बहुत जरूरी है। वर्थलेस फील हो रहा है, 10 मिनट के लिए फील हो जाने दें, और फिर उस थॉट से बात करें और कहें कि कैसे वर्थलेस भाई, रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन मेरे एफर्ट पूरे थे। हो सकता है मेरे एफर्ट में भी थोड़ी कमी रह गई हो, चलो मैं उसको, लेट मी जस्ट वर्क ऑन इट। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग constructively on your failures, then you must congratulate yourself that you have reached a phase where now you have a growth mindset. 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट होता है हाय मैं ही हूं, हाय मैं फेलियर हूं, हाय मेरे साथ ही सब बुरा होता है, हाय ईश्वर मेरे खिलाफ है, हाय पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, नेपोटिज्म चल रहा है, मुझे काम नहीं मिलता है। ऑल दैट इज फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट इज, अच्छा ओके, आई फेल अगेन, probably I might have done this, if I would have done these things correctly, I think शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, चलो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अपने अंदर अगर हम कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहें, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन इन लाइफ, प्लीज रिमेंबर। जब मैं एमबीए कर रहा था तो हमारे डीन हुआ करते थे राधे मोहन श्रीवास्तव, आर एम श्रीवास्तव सर। आर एम श्रीवास्तव सर ये कहते थे कि नोबडी इज परफेक्ट, if you're perfect you will be invisible, which means if you're perfect you'll become invisible. Why? His logic was beautiful. His logic was that only God is perfect and he's invisible. So don't strive for perfection, you'll never be perfect. What you must, or what we all must strive for, is being better version of ourselves. ये सब किताबी बातें हैं पर ये इतनी खूबसूरत बातें हैं, इनको अगर हम इम्प्लीमेंट करने लगे, इतनी पॉजिटिव बातें हैं। when you start working on being better version of yourself, you are competing with your own self. और अपने साथ कंपटीशन जो है is the most positive thing to do, because competing with yourself again में एक 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 वो अनकंट्रोलेबल आ जाता है। ये वाई जो है ना, ये अनकंट्रोलेबल। आप वाई के साथ compete कर रहे हो पर वाई क्या कर रहा है वो आपको नहीं पता है, आपके हाथ में सिर्फ वो है आपका अपना पुरुषार्थ। तो जब हमारे हाथ में हमारा अपना पुरुषार्थ ही है तो हमें अपने से ही compete करना चाहिए, क्योंकि अपने से competition is always to better ourselves, and also it saves us from a negative emotion called envy or jealousy. क्योंकि जब आप दूसरे से compete करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी जेलसी, ईर्ष्या का शिकार हो ही जाते हो। एक आखिरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैनिफेस्टेशन आजकल बहुत बात होती है मैनिफेस्टेशन पे। तो किसी ने मुझसे पूछा भी था और मुझे बड़ा अच्छा सवाल लगा, तो मैं इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन तो है रिजल्ट को एनविजन करना, और गीता का श्लोक कहता है कि डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। तो ये क्या है, क्या ये दोनों चीज़ें अलग हैं? नहीं, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। मैनिफेस्टेशन ये नहीं कहता है कि सुबह शाम बैठे रहिए और आंख बंद करके बस देखते रहिए।
मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मैनिफेस्टेशन कहता है कि सुबह उठिए और अपने आप को देखिए और फिर काम पे लग जाइए, और जब काम पर लगिए तब उसके बारे में मत सोचिए। सो मैनिफेस्टेशन इज अ टेक्निक टू probably control the uncontrollable। जो एनवायरनमेंट है, जो आपके, जो हमारा, हमारे हमारे आसपास की चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैनिफेस्टेशन से शायद वो कंट्रोल में आ जाए। और आपका पुरुषार्थ आपके अंदर की जो जो एफर्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। तो मैनिफेस्टेशन एंड नॉट वरिंग अबाउट द रिजल्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सो यही कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता था कि मैं बताऊं। बहुत सारी गलतियां करी हैं मैंने लाइफ में, आप ना करें। सेल्फ डाउट ये हमेशा आएगा, एंटरप्रेन्योर्स को तो ज़रूर आएगा। उसको हमेशा आपको हराना पड़ेगा, उसको हमेशा ये बताना पड़ेगा कि नहीं, हम इस पथ पर अगर आ गए हैं और इतना आगे आ गए हैं तो अब वो डाउट नहीं है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कर तो मैं लूंगी ही लूंगी। जब मैं जब एक महिला एक जीवन को धरती पर ला सकती है तो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। मैंने 2020 के बाद मेरे मन में मेरी माता और मेरी पत्नी के लिए जो रिस्पेक्ट था वो कई गुना बढ़ गया, क्योंकि 2020 में मैंने अनुभव किया कि घर चलाना कितना मुश्किल है। 2020 में मैंने अनुभव किया कि एक बच्चे के साथ 24 घंटा रहना कितना ज़्यादा मुश्किल काम। तो अगर आप वो मुश्किल काम कर सकते हैं तो बाकी तो दुनिया में बहुत ही, और मुश्किल इसलिए भी है ना क्योंकि कोई एक्नॉलेजमेंट तक नहीं है, अप्रिसिएशन तो छोड़ दीजिए। मैं बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि 2020 से पहले मेरे जहन में कभी कभी आता ही था कि यार ये दो मेड हैं, ये है क्या, क्यों परेशानी। इसीलिए शायद ईश्वर ने कहा चलो बेटा तुम्हें घर बैठाते हैं, देख लो जरा। और मैं नतमस्तक हो गया अपनी माता के लिए, खास तौर पर कि बीवी को तो आप बहुत ज़्यादा वैसे भी कुछ नहीं कहते हो, माता पे बहुत हुक्म चलाते हो। तो दोनों मतलब माता और मतलब सभी, ऑल लेडीज इनफैक्ट, द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट आई हैव नाउ फॉर women बिकॉज ऑफ selfless selflessly, doing things without a thought of appreciation just for their kids and their family is just amazing। तो इतना मुश्किल काम जो लोग कर सकते हैं उनको मेरे ज्ञान की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा मैसेज बस एक लास्ट चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि हम ना एज इंडिविजुअल्स वी डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारी कम्युनिकेशन स्किल हमारे अंदर की वो क्वालिटी है जो विच डिफ्रेंशिएट्स। दो लोग एक ही लेवल पर होंगे टेक्निकली, उन दोनों में से आप उसी को याद रखेंगे जो अपनी बात को बेहतर तरीके से कह पाए। वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो वो सलीका पैदा करना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ अ नेचुरल art, natural talent that we all have. Ladies and gentlemen, please remember that any natural talent that we have, we need to hone it. दुनिया में सबसे टैलेंटेड बैट्समैन में से एक सचिन तेंदुलकर थे, पर वो सिर्फ मैच के दिन नहीं खेलते थे, उनका वर्क एथिक था। What made him great was the number of hours he put on the practice field, on his skill set, which he was gifted with. So communication skill is a natural gift which we all must work on. तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करिए, और बाकी तो आप सभी बहुत कुछ अजीब कर सकते हैं। 1,000 बॉल्स, प्राची जी 1,000 कम है, 1,000 तो मिनिमम नॉक हैं जो एक बैट्समैन करता ही करता है। मतलब एक कुछ नहीं, सिर्फ एक थ्रो बॉल्स, हाँ। उसके बाद वो नेट पे जो वो लोग करते हैं, दैट्स मतलब इट्स इनसेन लेवल ऑफ प्रैक्टिस दैट एनी स्पोर्ट्समैन, एनी ग्रेट स्पोर्ट्समैन डू। एंड देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम दीज स्पोर्ट्समैन, फ्रॉम दीज आर्टिस्ट। हम लता जी या सोनू निगम की गायकी की तारीफ करते हैं, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उस गायकी के पीछे घंटों का रियाज है। जो वो स्टेज पर खेल रहे हैं सुरों के साथ, उस खेल के पीछे बहुत रियाज है कि आज वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा नेचुरल टूल है ना, इंस्ट्रूमेंट, उसके साथ हम खेल सकते हैं, बस रियाज की जरूरत है। तो थोड़ा सा रियाज पे फोकस करेंगे
और बस अब सवाल लिए जाए। एक सवाल किसी का हाथ आया भी था और फिर वो चला गया। अरे बाप रे, तो बहुत सारे Yes, मैसेजेस आ रहे हैं। the platform is open for Q&A. Vijay ji has to leave in That's another 4 to 5 minutes. Okay. So Amrapali ji, can you unmute them? Can I do that? Sheetal, can you unmute her? Sheetal? Shweta? Sorry, Shweta. 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 मैम एक सवाल मैं ऑलरेडी मैं आपको बता, किसी ने मुझसे यूथ को मैसेज को लेकर कुछ पूछा था। मैं बस एक ही चीज यूथ का मैसेज, जो यूथ को कोई मैसेज अगर, मैं सिर्फ ये कहना है, सब आई हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ माय ड्रिंकिंग हैबिट्स। आज 21 साल हो गए, मैंने शराब छुई भी नहीं है, पर 19 साल की उम्र में पीना शुरू किया था। 26 साल तक इतना पी लिया कि पैंक्रियास फट गया। एवरी थिंग दैट यू डू इन लाइफ, देयर इज एन एज इन्वॉल्व टू इट। 25 साल तक एटलीस्ट कोशिश करें कि शराब ना पी, किसी भी नशे को हाथ ना लगाएं। जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं ना, उसके बाद अगर आप जाते भी हो तो सोशल ड्रिंकिंग करोगे आप, एंड इट्स ओके। बट यंग एज में जब आप कुछ नहीं कर रहे, देन यू स्टार्ट ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग, तब आपका ना वो नहीं होता है, योर क्या कहते हैं उसे, विवेक जो होता है ना, योर डिस्क्रेशन। यू डोंट हैव द डिस्क्रेशन। द एक्सुबरेंस ऑफ यूथ टेल्स यू कि यार तुमने आधी बोतल पी, मैंने पूरी बोतल पी, देखो फिर भी मैं खड़ा हूं सीधे। और जब जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो आदमी कहता है यार 3 ड्रिंक से ज्यादा नहीं लूंगा मैं, भाई कल ऑफिस भी जाना है मुझे। आई डोंट वांट टू स्पेंड माई एंटायर डे हंगओवर। ये फर्क होता है, ये बहुत छोटा सा एक वो है। अगर आप रेजिस्ट कर पाए तो ये कोशिश करिए कि 25 से पहले कोई नशा ना करें। Thank you so much, Vijayji. We have another question lined up. So Sonal is saying that you have been fortunate to have a crucial support from your wife. या However, not everyone may be fortunate to have a supportive family network. What advice would you offer to entrepreneurs who face opposition or lack of support from their loved ones? How can they overcome this emotional barrier and stay motivated to pursue entrepreneurship dream? I think this is very common for a lot of women entrepreneurs. आई एम So, श्योर, आई एम श्योर। so एंड she just want, yeah, answer दिस to इज you. वन क्वेश्चन आई स्ट्रगल टू आंसर। व्हाई? Because at every stage in my life, the only thing that I always had was wonderful family support. Even when I was going the wrong way, the family was always there. Even when the doctor said that ये 15% चांस ऑफ सर्वाइवल है इनका, ये इतना शराब पी के आए हैं, आप काहे पैसा बर्बाद कर रही हैं? बोले नहीं, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। I had such support that in 20 years since that incident, my mother is, and my parents have never come up to me and said, यार अगर तुम शराब ना पीते तो शायद, no. In fact, my father gets very upset if I, so in most of the forums I talk about this incident. And there have been couple of forums, फिक्की का एक फोरम था, वहाँ पर पेरेंट्स थे, एक और फोरम में पेरेंट्स थे। तो पापा वो रो देते हैं, कहते हैं यार तुम ये सब बातें क्यों करते हो, अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या सोचेंगे। अरे मैंने कहा पापा जी, लोग कुछ नहीं सोचेंगे। So they don't even like to talk about it. So far as my wife is concerned, वॉइसिंग करनी थी तो उन्होंने कहा जाओ, पुश कर दिया कि छोड़ दो नौकरी, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। 2016 में मैंने थिएटर करना शुरू किया, तो मैं बैरी जॉन के यहाँ मैं चाहता था कि मैं एडमिशन लेके थोड़ी एक्टिंग सीखूं। पर क्या होता है ना, जब जिम्मेदारियों में उलझ जाते हैं तो आपको लगता है अच्छा करेंगे करेंगे करेंगे। वो 6-8 महीने तक टलता गया, वो मुझे लग रहा था नहीं हो पाएगा। वो गई हूँ फीस जमा करके, नेक्स्ट डे उन्होंने कहा डिपॉजिट द फीस, स्टार्ट अटेंडिंग द क्लास एंड मेक श्योर दैट इन अ मंथ्स टाइम पे मी माई मनी बैक। तो तो ऑब्लिगेशन भी हो गया कि पैसा भी वापस करना है इनको, और अब तो क्लास तो करनी ही करनी है। ठीक है ना? हर स्टेज पे जहां पर मुझे लगा है कि यार ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो कहती हैं अरे करा, देखा जाएगा, कर लो, देखा जाएगा, कर लो। So this is one question that I struggle to answer because I have not faced it, and I don't want to answer anything that I haven't faced. However, having said that, मुझे ऐसा लगता है कि one of the reasons why, like, my wife especially supports me is because she sees that conviction in me about what I want to do. फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, फिर उसमें वो देखती है मेरा पागलपन, फिर उसमें देखती हैं कि वो मैं किस तरह से उसमें लगा हुआ हूँ। आई थिंक अगर फैमिली को वो दिखाया जाए तो धीरे धीरे दे डू अ लाइन। दैट इज वन फ्रंट दैट यू डू नॉट वांट टू फाइट अ वॉर विद। एक लाओ जुन है शायद, वो कहते हैं कि यू मस्ट चूज योर बैटल्स। जिंदगी में आप सारी लड़ाइयां नहीं लड़ सकते, सो मस्ट चूज योर बैटल्स।
तो ये एक बैटल ऐसा है ना जो अगर ना हो तो ज्यादा अच्छा है, आपकी सारी कंस्ट्रक्टिव एनर्जी उसमें चली जाएगी। तो इफ यू कैन, प्लीज, in fact, one of the ways to get them on your side is to probably achieve something, There are कुछ एक three more achievement. there are three more जी hands raised. Manisha हाँ जी, ji, हाँ जी, So just one Krishna ji, question. quickly we'll take all of them. हाँ हाँ हाँ। Vijay ji, और मैं आपको एक और बात मैं बता देता हूँ, ये 3 क्वेश्चन हम अभी भी ले लेते हैं, और इसके बाद ना जो भी आपका सवाल है बिग वीडियो बॉस का आवाज सुनना है हमको। हाँ हाँ मैं हाँ, बताऊंगा, लोगों मैं का अभी रिक्वेस्ट सुनाइए आया सर, है I can कि write बिग it बॉस, down. Yeah. यस, आप एक काम वॉइस में, करेंगे, अभी क्या 3 हम सवाल लेते हैं, और उसके बाद जो भी सवाल होंगे वो सब लोग 30 सेकंड का वीडियो बना के भेज दें। I'll श्योर, individually answer those questions. वेरी Thank गुड, you वेरी so गुड, much, दैट Vijay, विल for बी this. You. Thank अरे you so much. the least I can do, please. Yeah. हाँ जी, मनीषा पहले जी मनीषा विजय जी। सर, गुड जी, इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग मैम। वंडरफुल सेशन, मतलब इट्स सो इंस्पायरिंग था, बहुत ही इंस्पायरिंग है, ऐसे लग रहा था अपने थैंक लाइफ यू, से ही कनेक्टेड है। सो वी आर रियली थैंक यू फॉर द सेशन। मेरा थैंक यू, क्वेश्चन थैंक यू। है कि कम्युनिकेशन का आपने लास्ट सेंटेंस मतलब बताए थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे आप काम कीजिए। सो जी हाउ कैन यू प्लीज गाइड अस, एक 2-3 मतलब ये कर सकते हो देखिए, प्लीज? हाँ बहुत 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 सिंपल काम है, प्राणायाम शुरू कर दीजिए। योर वॉइस एंड योर कम्युनिकेशन इज नथिंग बट योर ब्रेथ। ब्रेथ अगर कंट्रोल में आ गई तो आपकी आवाज़ अपने आप आपके कंट्रोल में आ जाएगी। ब्रेथ अगर आपके कंट्रोल में आ गई तो नर्वसनेस आपकी, आप सीख जाओगे नर्वसनेस से कैसे डील करना है। सो प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, पहला काम ये करिए। दूसरा काम, बहुत बेसिक टेक्निक है, बहुत काम आती है, अपने को रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड योर कॉन्वर्सेशन। सो आपकी 2 आवाज़ें हैं, प्रोफेशनल वॉइस एंड कॉन्वर्सेशनल वॉइस, हमें नहीं पता होती हैं। आप जब माँ बाप दोस्तों से बात कर रहे होते हैं तो एक अलग आवाज़ निकलती है, एक अलग तौर तरीका होता है, और जब प्रोफेशनली आप ऑफिस में बात करते हो या बॉस से बात करते हो तो एक अलग तरीके से बात करते हो। बिकम अवेयर ऑफ दैट, रिकॉर्ड करिए अपने आप को। तीसरी चीज़, स्टार्ट रीडिंग अलाउड। जो सचिन तेंदुलकर 1000-2000 बार बॉल को मार के करते हैं, वो ये करते हैं कि अपने टूल पे अपने कंट्रोल पैदा करते हैं। वो उनका टूल क्या है? उनका हाथ, उनकी आंखें, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। सिंगर अपनी आवाज पे टूल, उसको, जैसे कोई अगर इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है तो वो उस इंस्ट्रूमेंट पे कंट्रोल पैदा करते हैं। जब आप लाउड रीडिंग करते हैं तो शब्द आपकी जबान पे चढ़ने लगते हैं, धीरे 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 धीरे, दे बिकम अ पार्ट ऑफ यू। Then after a certain point of time, what happens is that while communicating, your focus shifts from how I am sounding and how I'm pronouncing to what I am saying. Then your thoughts are better connected to your voice. Then your thoughts are better connected to your speech. वरना क्या होता है कि हमारा फोकस इसी बात में रहता है, ये शब्द ठीक निकल रहा है कि नहीं, हम साउंड कैसे। जब फोकस वहां पर है तो आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो? आपका थॉट तो आपका फोकस शिफ्ट हो गया ना, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन योर थॉट एंड योर स्पीच देन। सो स्टार्ट लाउड रीडिंग। ये तीसरी चीज, 3 चीजें करिए, बहुत फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आम्रपाली सोनी जी भी है जो हैंड रेस किया है। Yeah, Amrapali, can you ask your question, please? Sure, sure, ma'am. Heartfelt gratitude towards you, sir. Thank you so much for such a wonderful session. थैंक And यू। I really thank Jito and JIF for conducting such speech. So my question to you is, what it takes to be a motivational speaker? Actually, I don't consider myself a motivational speaker, honestly. But I if am a one speaker. I wishes to speak become, well. I okay. speak well. Okay. And the credit of that, part of it goes to my love for literature and poetry since I was very small. Secondly, the realization that if you want to speak well, these are the things that you need to have your command and control over. And thirdly, regular practice. This is not how I used to speak English. My English was pathetic. रोज वो जोर जोर से कि पैराग्राफ्स और सेंटेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ भी रैंडम कुछ भी लेके, एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द प्रॉब्लम इज हाउ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वंस ही ग्रोज। सी द रीजन व्हाई आई यूज्ड टू डू एंड आई स्टिल रीड लाइक दिस इज, हम सब कंडीशनड होते हैं, हम सब, हमारी आवाज़ें जो हैं कंडीशनड होती हैं, हमारा प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन जो है वो कंडीशनड होता है। कई बार उसमें दूसरी लैंग्वेजेस का भी एक इफेक्ट आ जाता है। तो ये जब आप इस तरह से मुंह खोल खोल के पढ़ते हैं तो आप उस एक्सेंट को न्यूट्रलाइज करते हैं,
और शब्दों की क्लैरिटी को समझते हैं और शब्दों में क्लैरिटी पैदा करते हैं. तो इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, start reading a lot, right? Start Yes, sir. loud reading a lot. Start doing loud reading. Start putting yourself in imaginary situations and start talking aloud. मन में नहीं, मन में सब सही होता है. मन में हम सब इरफान जैसे एक्टर हैं, मन में हम सब पीयूष बंसल जैसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मन में हम सबसे अच्छा स्पोर्ट्समैन हैं, गायक हैं. मन में कुछ नहीं होता है. अलाउड, जोर जोर से. I think these are the few things that record yourself while speaking. See how your non-verbal communication is happening. Verbal communication तो आप देखोगे ही देखोगे, non-verbal cues भी देखना शुरू करो. So these are the ways that you can be a good speaker. Rashmi, So, well, can I ask you one more question if you don't mind? Mm-hmm. Yeah. So, like, I'm already a career counselor. I do it Hmm. worldwide consultations. Right. So many countries I have already done with. Yeah. My question main was like, I'm already giving sessions, motivational Yeah. sessions in schools, seminars. Right. Right. But when it comes to communication, just not English is required, even in Hindi. Yeah. But Yes, of is it course. necessary to be a person has to be an author too? No, no. If you can write, Okay. it's good. If you can't, it's okay. But if you can write, it becomes an added advantage because you can write in your head. Mm-hmm. और so कुछ Rashmi, टेक्निक्स भी हैं. Okay. स्पीकिंग की टेक्निक्स भी हैं. जैसे एरिस्टोटल कह गए हैं, पैथोस, लोगोस और इथॉस. ये 3 चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो यू कैन बी अ गुड पब्लिक स्पीकर. पैथोस इज इमोशन, Mhm. लोगोस इज लॉजिक, एंड इथॉस इज योर credibility. So Okay. to start with ethos, start with building your credibility, tap on the emotion, pathos, and ethos, pathos, and logos. And Logic. then, of course, the logic has to be there in your communication throughout. Mhm. तो इस तरह से भी आप वो कर सकते हैं. So, just one last question, Thank you and so then much, we'll have sir. Vijay ji speak in the voice of Big Boss because we are running short of time and he has another session. He has extended it for us. yeah. Shweta ji, if you can just quickly ask our question. Vijay ji, just last question, and Yes, then we please. have to hear your Yeah. Big Boss voice. And also, you can send me your questions. I'll answer And them. we Send will. the We will do questions that. and Vijay ji can answer in the group Yeah, as well. I will. I will. Okay. I can access this Jyoti group ji, after logging out also. Yes, we'll add you to the group. Yeah, WhatsApp we'll add you to group. the group, yes. Ah, Because wonderful. we have 7 sessions. Oh, wonderful, wonderful. ठीक है, so ठीक your है. Big Boss voice we are missing. दोपहर 12 बजे बिग बॉस ने JIIF में आए सभी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का तहे दिल से स्वागत किया और प्राची जी का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया. आगे देखिए. Awesome, awesome. Thank you. So good. So good. Amazing. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एक Can सवाल you और please था ना. share your life journey someday? सॉरी. Can you please share your life journey someday in other sessions? वी कैन डू वन मोर सेशन. Yeah, we will. We will. Yeah. There's a आधे घंटे request, दीजिए. Vijay ji. They all want to have a physical class with you. अब ये कैसे कहाँ possible करनी है? बताइए. वही we'll plan out. We'll leave हाँ, plan. बताइए. निखिल जी परमिशन दे तो हम प्लान करते हैं. For sure. प्लीज, मेरा सौभाग्य होगा परमिशन की, कोई बात ही नहीं. मुझे तो अच्छा लगता है. मुझे बहुत खराब लगता है ऑनलाइन सेशंस. Yes, आज more than 225 जुड़ी है and अभी तो नशे में डूबे ही थे आपकी आवाज के नशे में. अरे लेकिन सोचिए 225 अगर मुझे इन पर्सन दिखते तो मुझे कितना मजा आता. मजा And Vijay ji, we were discussing before you joined in the statistics. So we have created another yoga group for some other session. That हाँ. typically the point is that जितने भी लोग group join करते हैं, only 15% join the session. ओके. ओ. Okay, so JIF and JLW में हमने जो ग्रुप बनाया था उसमें 200 219 जन थे जिन्होंने ज्वाइन किया था 200 ज्वाइन हुए. and 225 ऊपर यहाँ पे लाइक थे. So this is more than 100% strike rate which we Wow. have. So we are changing And the प्राची statistics इसमें with काफी this. यूथ भी जुड़े हैं. You And see we're the changing the full. statistics with this, Vijay ji. अरे वाह. Prachi, I काफी. can ये add one अरे more point. भीलवाड़ा में कोई बुला रहे हैं. Yes, भीलवाड़ा में कोई Manisha. बुला रही हैं. खुशबू जी भीलवाड़ा बुलाइए भाई, मैं तो आने को तैयार हूँ. It's a beautiful Yeah, place. this is quite So Gandhidham as inspiring. well. Gandhidham, देखिए, Gujarat मैं as आपको well. एक बात बताऊं कि जिसको भी मुझे बुलाना है, मैं बहुत खाली आदमी हूँ. प्लीज मुझे बुलाए. मैं So you अपना are very वो- humble. मैं अपना वॉइस ओवर का सब, मेरे पास माइक वाइक है, मैं लेके चलता हूँ हमेशा. तो मैं हर जगह से वॉइस ओवर करता रहता हूँ. मेरा काम बड़ा मोबाइल तरीके से होता रहता है. तो अनलेस आई एम शूटिंग,
अगर मैं किसी जैसे भी मैं Yesterday फरवरी you के were फर्स्ट shooting वीक for में Big Boss, I think. Yesterday when we यस spoke. यस एंड चलिए देन क्विकली जी हमारे जी Uh, सॉरी शेरिक भी काफी देर से खड़े हैं। शेरिक जी रेज्ड हैंड, या उनको प्लीज ले प्लीज लेते हैं, प्लीज यस यस एक सवाल ले लेते हैं फिर मुझे भेज एक ले दीजिएगा आप लेते हैं। सवाल yeah. विक्रम जी, मुझे सिर्फ एक 4 लाइनें फिर से बोलेंगे आप? वो मलाल है मगर इतना मलाल है, तो वो बहुत परवीन इंस्पायर। शाकिर परवीन हाँ, शाकिर का वो शेर है जो कि कहती हैं कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी हैं। मजा तो या तब है कि हम हार के भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत इसमें बहुत बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है inspiration। लाइनों में। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ जिंदगी, यही तो कवियों को शायरों की खासियत होती है सर, कि दो दो लास्ट की पंक्तियों लाइन में फिर से बोलिए, मैं लिख रही हूँ। जीत के हमेशा जीत सॉरी मुझे मजा तो तब है जब हम हार के भी हंसते रहें, हाँ, हमेशा जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। जीत जाना ही कमाल थोड़ी है। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब 13 हो गया है, 2 मिनट मेरे बचे हैं, तो अब मैं जो दूसरे So उसमें ज्वाइन just होता हूँ one आप quick लोगों। question जी जी I have यस been प्लीज trying to ask. I don't know यस if प्लीज I'm audible or not. बताइए बताइए, ये यू आर ऑडिबल, I- यू आर ऑडिबल। okay. So firstly, Jai Jinendra, everybody, I have joined from Bangkok and really grateful to Jito JIF for convening this session today. My question is that, sir, you spoke about having some negative thoughts, and you said that, Yeah. it's very natural in the whole process. It's very natural to go very negative to such an extent that sometimes you start getting suicidal thoughts. Yeah, you can. And so, There's no sir, problem how with do that. you cope up with them then? You just experience them and then just move away. That's it. There's no other way. You have to keep telling yourself that you cannot entertain this thought. You even if you entertain, you cannot accept this thought. That is it. So there's a difference between entertaining the thought and accepting it. Entertain, please do entertain. Don't indulge and accept. Don't accept that you are a failure. Don't accept that you are worthless. ये सब आते हैं ना इमोशन, ये यस सब सर। आता है ना जहन में You कि mean self-talk and keep on ये inspiring yourself? एब्सोल्युटली वो सबसे जरूरी चीज है। हमको सबसे ज्यादा खुद से बात करनी चाहिए। Right. Thank you so much for your wise words. थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड। मैं अब ये उम्मीद कर रहा हूँ कि 225 इनविटेशंस अलग अलग जगहों से आएंगे मुझे अब। Awesome. yes. Awesome. Thank you, Vijay ji. थैंक यू Thank you थैंक यू सो Thank you, मच। Vijay ji, Thank for you. sharing your incredible insights। और आपकी जो जीवन की जो आपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर की है, काफी अच्छी थी। जो वो आपका कन्विक्शन वाली बात, जिद करने की बात, एंड देन जी परफेक्ट नहीं रहने की बात, दोनों ही बहुत अच्छी लगी। इट्स ऑल अबाउट योर थॉट प्रोसेस एंड हाउ यू परफॉर्म एंड एक्सेप्ट योर फेल्यूर्स, थिंकिंग दैट दे आर स्टेपिंग स्टोन्स फॉर योर सक्सेस। थैंक यू या सो मच थैंक यू सो मोटिवेटिंग मच। आवर लेडीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड And आप सभी अपने सवाल जरूर भेजिएगा, मैं आंसर। yes, Sure. finally, Thank you, Vijay. Thank you so much. थैंक यू थैंक Thank you यू। so much, Anita. बाय बाय। thank you. बाय। Thank you Finally, so to much, sir. conclude, Thank you yes, so much. थैंक्स बाय। finally, to conclude this enriching session, I invite CA Ritu ji, the Chief Secretary of JLW Apex, to deliver the vote of thanks. Ritu ji? रितु जी है श्वेता? हाँ अनीता जी, आप या जीनल दे दीजिए। हाँ, जीनल, do you want to do that? प्राची जी या प्राची, do you want to do that? Anita ji, आप ही करिए. I'm Yeah. fine with that. Thank you और so एक much. और, जैसे कि उन्होंने ब्रीथ के ऊपर बोला ध्यान देने के लिए, तो अपना अरहम योगा का क्लास अर्ली मॉर्निंग 6:30 होता है। तो उसमें भी, क्योंकि इतने अच्छे यहाँ पे दिस श्रोतागण हैं, कैन से द अटेंडीज आर वेरी नाइस हियर, तो आप लोग प्लीज अटेंड करिए। अर्ली मॉर्निंग 6:30 योगा क्लास सेशन है, फ्री फॉर JLW मेंबर्स एंड योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू। एंड जो पब्लिक स्पीकिंग का बोला, उसके लिए भी डॉक्टर शिवानी शर्मा का क्लास बहुत जल्दी आ रहा है, तो वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप टच में रहिए JLW के। Thank you, Sheetal ji. I Thank think you the all. speaker has left. Yeah, speaker is left. Thank you Yes. all so much who all have been present here and you have shown your enthusiasm towards this program. Thank you, Apex dignitaries. Thank you, all the conveners. Thank you, CPCS and the team Apex who are on present here and who have worked background like Shweta, Zinal,
and me, Prachi also. And thank you all for being here. And we have 6 more sessions. Please do hook to us. We'll be posting in the groups and post your questions also. We'll try to get the videos from Vijay Vikramji. And believe me, this will be a very good Master Series session. And you'll be getting certificates also. You'll be empowering yourself through these sessions. And what all Sheetalji said to join yoga, Arham Yoga, and Shivani Sharma's class, please do join. It's only about empowering yourself. Thank you all. Yeah. One and And Thank you Sheetalji, so I'm so much. sorry. I wanted to say Jinendra Shweta. Bhaiya. Yeah. Big By thanks mistake, to I took your Jinendra name. I'm Bhaiya so also. Yeah, sorry. Prachi. Vice Chairman. I'm Members, saying big just, thanks by to joining the Jinendra group, can Bhaiya we from GIF team. Yeah, Jinendra ji, Bhandari ji. excuse me, ma'am? Just by Kya joining hai? this group, can we be the part of this entire team? And thank you so much, heartfelt gratitude Yeah. towards this entire team of Jito.